ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਾ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਨਿਯਮ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਨਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਨਮ ਹੈ, ਆ ਮਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਖਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਏ ਅਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਬਰਨ ਜਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਨਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੂ ਬਹੂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੌਧ ਮਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਨਵੀਨ ਰਸਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਧੀ, ਸਾਰੇ ਜੈਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਹਾਵ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਾਲ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਰੂਥਲ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਓ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
जब कोई दुनियावी ऐशो आराम मिल जाता है तो बहाव दे तेजी खत्म हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वगना होंदा है। फिर ऐसा भी होंदा है कि पदार्थ ये सहूलतां इन्हां नूं अपने विच जज़ब कर लैंदियां ने, ते जे थोड़ा बहुत बहाव वास्ते जल बचिया होवे तो सूरज दीयां किरनां सुका देंदियां ने। कुछ आए हुए कलेश, दुख, संताप इन्हां नूं सुका के रख देंदे ने, और इस तरह इन्हां लोकां दा परमात्मा तक पहुँचना कठिन हो जाता है। सारियां नदियां सागर तक नहीं पहुँचदियां, सारे मनुख परमात्मा तक नहीं पहुँचते, सारे बोए हुए बीज फल तक नहीं अपड़ते। हो सकता है धरती अनुकूल ना मिली हो सकता है वक्त सिर पानी ना मिले होवे, खाद ना पाई गई होवे, और ऐसा भी हो सकता है इस बीज दे नाल नाल घास इतनी उग आई होवे कि उस बीज नूं पनपण दा मौका ही ना मिले और फल तक वो अपड़ सके, इस तरह उसकी किस्मत भी ना बन सके। तो है तो मनुख एक सरता परिपूर्ण उदों होवेगी जब परमात्मा दे लीन होवे। है तो मनुख एक बीज, पर जितने चिर तक आनंद दा फल, ज्ञान दा फल इहदे चों उदय नहीं आउंदा, उतने चिर तक इसका दुख ते संताप धरती दे विच बनिया ही रहेगा, या धरती दे उपर बनिया ही रहेगा, क्योंकि फल तक अपड़िया नहीं। तो इसे तरीके दे नाल असी देखते हाँ ये मनुख रह जाता है। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे सागर तक पहुँचता है, इस तरह मनुख परमात्मा तक जो पहुँचते हैं अपनी अपनी मर्यादा दे, और ये मर्यादा परम पुरख बनाते ने, अवतारी पुरुष जो है बनाते ने। इस्लाम दे है पहले शरा, फिर तरीकत, फिर मार्फत, फिर हकीकत। सनातन मत दे है पहले कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर है ज्ञान कांड। ज्ञान तक पहुँचना, भगवान तक पहुँचना है, ऐसा वैदिक मत कहता है। हकीकत तक पहुँचना, खुदा तक पहुँचना है, ऐसा इस्लाम कहता है। हकीकत सच्चाई खुदा की है, सच। ते सच तक पहुँचने का वसीला की है, शरा। आरंभता शरा तो करनी पड़ेगी और फिर तरीकत कुछ छोड़ना पड़ेगा। मार्फत कुछ बैराग दी दुनिया, हकीकत खुदाई दुनिया, सच दी दुनिया। इसी तरीके नाल हिंदू मत कहता पहले कर्म कांड, तीर्थां दा इशनान, पूजा पाठ, रटन, दान पुण्य, देवी देवतावां दा पूजन, ये सारा कर्म कांड निभाना पड़ेगा। और एक दिन कर्म कांड तो तंग आके, थक के मनुख दूसरे पड़ाव ते पहुँचता है, उपासना कांड। उस ध्यान साधना है, उस मन नूं इकागर करना है, किसी रंग विच, किसी रूप विच, किसी मूर्ति विच, किसी तस्वीर विच, या किसी दीवे विच, या मस्तक विच। और ध्यान की एकाग्रता ज्ञान नूं जन्म देंदी है, ज्ञान ही भगवान है, ऐसा सनातन मत। गुरमत कहती है पहले धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, फिर सर्म खंड, और फिर कर्म खंड, ते फिर सच खंड। पहुँचना सच तक है, सच ही ईश्वर है, सच ही परमात्मा है, पर उस तक पहुँचने का वसीला पहले धर्म, मर्यादा। तो सिख जगत की भी अपनी एक मर्यादा है, अपना एक कर्म कांड है, अपनी एक शरा है। जैसे स्कूल दे बच्चे जाते ने स्कूल दी यूनीफॉर्म पहन के, और स्कूल दे बकायदा एडमिशन भी लेंदे ने। हो भाओ इस तरह अमृत पान करना, एक गुरमत दे स्कूल दे दाखला लेना है, और रहत बहत नूं धारण करना। ये रहत की है?
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समकाली भाई साहब भाई नंद लाल निकटवर्ती समकाली और कलगीधर पिता अक्सर कहा करते सन कि नंद लाल एक महान सिख है, नंद लाल एक महान दानी है, नंद लाल महान एक ज्ञानी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उसकी तसनीफ सुदा किताब जो उसने सब तो पहले लिखी बंदगी नामा, मेरे पातशाह ने उस किताब नूं वर भी दिता, आख्या जिंदगी नामा, जिहड़ा भी इसनूं पढ़ेगा उसनूं रूहानी जिंदगी मिलेगी, आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। तो उन्हां दी लिखत ये दो नामां नाल प्रचलित है, जिंदगी नामा उर्फ बंदगी नामा। ये महान दार्शनिक फिलोसफर गुरु दे भगत सिख रहत मर्यादा बारे इंज कहते ने, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ। जैसे पंजाबी का कक्का है, इंग्लिश दी के, हू बहु प्रशिंद इस आवाज़ का जो अखर है उन्होंने कहते ने काफ। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, सिखी दी निशानियां पंज काफ दे हरफां दे बंद ने, पंज ककियां दे केड़ियां आप प्रशिंद ही इसका खुलासा करते हैं। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। इन्हां पंजां दे चों जिहड़ा काफ जिहड़ा कक्का सिख कोल नहीं, वो माफ़ी का ख्वाहिशगार नहीं हो सकता। जैसे असी देखते हैं दुनियावी विद्या पढ़नी है तो बच्चे उस स्कूल की बकायदा ड्रैस पहन के जाते हैं, अध्यात्मिक विद्या लई भी यही नियम है, परमात्मा की विद्या लई भी यही नियम है। और दुनिया के तमाम अवतारी पुरुषों ने अपने अपने ढंग के लिबास या इंज के लिए ककार बनाए ने। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। ये पंज की ने, कड़ा कार दो काच कंगा बिदा, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। कड़ा कार दो कृपान, कड़ा कार दो काच कछहरा, कड़ा कार दो काच कंगा बिदा, कंगा बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। पंजवां ककार केस भाई साहब भाई नंद लाल लिखते हैं, और केसां तो बिना ये बाकी चार निशानियां प्रवान नहीं। जैसे लाड़े नाल ही बरात शोभा पांदी है, केसां नाल ही कड़ा शोभा पांदा है, केसां नाल ही कंगा शोभा पांदा है, केसां नाल ही कृपान शोभा पांदी है, और केसां नाल ही पंजवां ककार कछहरा जो है प्रमाणिक बनता है। मूल केस ने भावें बरातियां की अपनी अहमियत है, पर है लाड़े करके। बाकी रहतां की अपनी लोड़ है और अपनी खासियत है, पर इन्हां दियां खूबियां केस करके ने, क्योंकि केस करके ही पता चलता है ये सिख है, ये सिंह है, ये उसकी तस्वीर है, ये उसकी जो है मूर्ति है। उस्ताद ज़ौक ने किसी वक्त कहा सी, एक हम हैं लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़, एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है। कुछ दुनिया च ऐसे सियाने लोग भी ने जो ऐसी तस्वीर बना देंगे ने रंग भर के, जिन्हों देखते हैं वाह निकल जाता है मूँह दे भी कमाल है। ऐसी तस्वीर काबिले दीद जिन्हों देखते हैं अखां रजनी ना और अखां कहन देखना है, होर देखना है, होर देखना है। ज़ौक कहता है किसी नूं ते बड़ी सोहनी तस्वीर बनानी आउंदी है, पर एक मैं हाँ जो रब ने मैनू बनाया, ते रब दी मैं बनाई हुई तस्वीर मैं ते अपनी तस्वीर ही बिगाड़ के बैठ गया। एक हम हैं लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़, एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है। तो ये पंज ककार उस तस्वीर की रूप रेखा है जिसनों कहते हैं सिख, जिसनों कहते हैं सिंह,
ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕਾਚ ਕੰਗਾ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਈ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 5 ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਔਰ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿਲਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਕਹਿਲਾਇਆ।